عثمانی تخت کے طاقتور حاکم سلطان محمد فاتح سلطان محمد دوم کی فتح استنبول نے انہیں مفاتح کا لازوال لقب دیا۔ اپنی فتح کے بعد عثمانی سلطان نے استنبول کو اس وقت کے سب سے بڑے یورپی شہر میں تبدیل کر دیا، تعمیر نو کے ذریعہ اسے بحال کیا۔ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں سامنے آنے والے ہر سلطان کی مہارت مختلف رہی ہے۔ مثال کے طور پر سلطان سلیم اول، جسے سلیم گریم یا سلیم دی ریزولوٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور سلطان مراد چہارم اپنی فوجی صلاحیتوں کی وجہ سے نمایاں تھے، جبکہ سلیمان اول، جسے عام طور پر مغرب میں سلیمان عظیم اور سلیمان کو اس کے دور میں قانون ساز کے نام سے جانا جاتا ہے، اور سلطان محمود دوم نے اپنی سیاست سے توجہ مبذول کروائی۔ اسی طرح سلطان عبدالحمید دوم اور سلطان محمد پنجم وحید الدین نے سفارت کاری میں اپنی مہارت سے شہرت حاصل کی۔ ساتویں عثمانی سلطان محمد دوم، جسے محمد فاتح کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، نے نہ صرف سیاست، فوجی خدمات اور سفارت کاری میں بلکہ سائنس اور ادب جیسے شعبوں میں بھی اپنی قابلیت ثابت کی۔ اس لحاظ سے وہ ایک مکمل فلسفی حکمران تھے، جن کی مثالیں یورپ میں بھی شاذ و نادر ہی ملتی ہیں۔ نیا دور سلطان محمد دوم 1432 میں سلطان مراد دوم کے ہاں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ ہما خاتون کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اسفندیاروں کی شہزادی ہے۔ سلطان محمد دوم کو اس وقت کے اہم علماء نے سبق سکھایا تھا۔ اس کے والد سلطان مراد دوم، جو اپنے بیٹے کو زندہ رہتے ہوئے حکومت کرتے دیکھنا چاہتے تھے، نے اسے تخت چھوڑ دیا۔ تاہم ایک بڑی صلیبی فوج کے حملے پر نوجوان سلطان نے اپنے والد کو دوبارہ تخت پر بلایا۔ 1451 میں سلطان مراد دوم کی وفات کے بعد محمد دوم دوسری بار تخت نشین ہوا۔ اس نے فوری طور پر استنبول کی فتح کے لیے تیاری کی۔ اس خیال کو اپنے ذہن میں محسوس کرنے کے لیے اس نے سب سے پہلے رومیلی قلعہ قائم کیا، جس نے شہر کے باسفورس سپلائی روٹ کو کاٹ دیا۔ اس کے پاس توپیں تیار تھیں جو تیزی سے ٹھنڈی ہو گئیں۔ گولڈن ہان کو بند کرنے والی زنجیر کو بائی پاس کرنے کے لیے اس نے بے پناہ دستی محنت کا استعمال کرتے ہوئے جہازوں کو گالٹا کے اوپر لکڑی کے لاگوں پر گھمانے کا حکم دیا۔ ایک بار زمین پار کرنے کے بعد جہازوں کو واپس پانی میں گولڈن ہان میں ڈال دیا گیا۔ آخر کار 53 دنوں تک جاری رہنے والے ایک مشکل محاصرے کے بعد 29 مئی 1453 کو دنیا کا موتی استنبول مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا۔ اس طرح سلطان محمد دوم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو محسوس کیا کہ ایک دن قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا۔ عظیم سپاہ سالار ہے جو اسے فتح کرے گا۔ ان کے عظیم سپاہی ہیں جنہوں نے انہیں اسلامی دنیا میں عزت بخشی۔ اس کے بعد وہ ابو الفیق فتح کا باپ اور فاتح کے نام سے جانا جانے لگا۔ سلطان محمد دوم نے فتح کے بعد آرتھوڈوکس پدرشاہی کے خالی عہدے پر ایک نیا سرپرست مقرر کیا۔ اپنے ملک میں آرتھوڈوکس کے محافظ کی حیثیت سے اس نے کیتھولک اوہے کے خلاف طاقت حاصل کی۔ عثمانیوں نے تباہ شدہ شہر کو دوبارہ تعمیر کیا، اس پر اپنا نشان لگایا۔ اس فتح کے ساتھ یہ یقین مضبوط ہوا کہ یورپ عثمانیوں کو روکنے کے قابل نہیں ہوگا اور لوگوں کو نئی دریافتوں پر مجبور کیا گیا۔ اسی وقت نشت ثانیہ کا آغاز ہوا۔ کچھ مورخین کے مطابق استنبول کی فتح نئے دور کے آغاز کی علامت ہے۔ عنوان کے مستحق ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اس نے بلغراد کے علاوہ پورے سربیا کے ساتھ ساتھ پیلوپونیز، بوسنیا ہرزیگووینا اور البانیہ پر قبضہ کر لیا۔ ولاچیا اور مولڈویا کے علاقے سلطنت عثمانیہ سے خود مختار ریاستوں کے طور پر جڑے ہوئے تھے۔ بازنطین باقی ماندہ ریاست جس نے ٹربزون میں پونٹس کی بادشاہت اور کرمانیوں کی بیلک سلطنت کے نام سے حکمرانی کی، وہ مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ جب محمد دوم نے 1461 میں ارزنکن پر پیش قدمی کی تو ایک قیونلو ترکمانوں کے حکمران ازون حسن بے نے اپنی بوڑھی ماں کو تحفے کے ساتھ سلطان سے ملنے کے لیے بھیجا۔ سلطان نے بوڑھی عورت کا احترام سے استقبال کیا۔ ماں کی خاطر اس نے ازون حسن بے کے ساتھ صلح کی اور وہ بول کر پہاڑوں کے ذریعے ٹربزون کی طرف چلا گیا۔ پہاڑ اونچے تھے اور سڑکیں خستہ حال تھیں۔ سلطان پیدل چل رہا تھا۔ ازون حسن بے کی والدہ نے کہا، بیٹا، کیا ٹربزون کے لیے اپنے آپ کو اتنا تھکا دینا مناسب ہے؟ سلطان نے جواب دیا، ماں، اسلام کی تلوار میرے ہاتھ میں ہے۔ اگر میں نے ان مشکلات کو برداشت نہیں کیا تو میں تجربہ کار کے لقب کا مستحق نہیں ہوں گا۔ مجھے شرم آئے گی جب میں کل اللہ کے حضور حاضر ہوں گا۔ اس طرح اس نے پہاڑ کو عبور کیا اور ٹربزون کو فتح کیا۔ ایک کوانلو کا ازون حسن بے، جس نے مشرقی اناطولیہ اور ایران میں حکمرانی کی اور سابق اناطولیہ کے بیز اور وینس کی طرف سے مشتعل ہوا، 1473 میں اوتلوک بیلی کی جنگ میں سلطان محمد دوم کے ہاتھوں شکست کھا گیا۔ افواہ یہ ہے کہ ازون حسن بے نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، اے کرمانی، اپنے خاندان کو گرنے دو، تم نے مجھے بدنام کر دیا۔ عثمان اغلوب یعنی عثمان کے بیٹے اور سلطان محمد دوم کا حوالہ دیتے ہوئے کے ساتھ میرا کیا کاروبار تھا، اور اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ وہ عثمانیوں سے نہ لڑیں۔
सुल्तान मोहम्मद दुवम ने उनका ताक़ुब न करते हुए कहा कि मुस्लिम मुल्क को तबाह करना, इस्लामी हुकूमत का तख्ता उलटना और मुसलमानों के साथ जिदोजहद करना दुरुस्त नहीं है। इस्तांबुल की फतह के बाद उस्मानी रियासत इससे मुंसलिक इलाकों की बदौलत एक सल्तनत बन गई। एक सल्तनत एक अजीम रियासत है जिससे मुख्तलिफ ताज वाबस्ता है। करीमियाई खानीत तहलील शदा गोल्डन हॉर्ड रियासत की बाकी रियासतों में से 1475 में रज़ाकाराना तौर पर उस्मानी हुक्मरानी में दाखिल हुई। दूसरे खानत को एक एक करके रूसी ज़ार एवान चहारुम वासिलिविच ने पकड़ लिया, जिसे एवान दी टेरिबल भी कहा जाता है। सुल्तान मोहम्मद दुवम ने 20 रियासतों के खिलाफ अकेले जंग लड़ी, 17 के साथ साथ 200 से ज्यादा शहरों और कलों को फतह किया। बलगरात के मुहासरे के दौरान उनके माथे और घुटने में चोटें आईं। इसके दौर में उस्मानियों ने बहरी ताकत में वीनस को पीछे छोड़ दिया और दुनिया की सफ अव्वल की बहरिया बन गई। यूरोपियों ने सुल्तान मोहम्मद दुवम को तस्लीम किया, जिसके पास करीमिया, बोस्निया, विलाचिया, मोल्डविया, इरेडियल और अल्बानिया समेत बहुत से ताज थे। इतालवी इसे एक हीरो के तौर पर देखते थे जो उनके बिखरे हुए मुल्क को मुत्तहिद करेगा। उस्मानी फौज ने 2 शाखों में चलते हुए बुहेरा रोम में ईसाइयत के सबसे अहम अड्डे रहोड्स का मुहासरा किया, जिसमें 60 बहरी जहाज और ओट्रांटू, इटली की एड़ी पर 100 जहाज़ों के बेड़े के साथ मुहासरा किया। रहोड्स को पकड़ा नहीं जा सका, लेकिन ओट्रांटू गिर गया। अजीम उकाब मर जाता है। 1481 में सुल्तान मोहम्मद दुवम ने एक फौजी मुहिम का आगाज किया, जिसका मकसद खुफिया रखा गया था, लेकिन ख्याल किया जाता था कि मिस्र और रहोड्स के जरिए इटली। ताहम सुल्तान, जो कुछ अरसे से गठिया पौडागरा में मुब्तला था, इस मुहिम के आगाज में ही इंतकाल कर गया। ये सोच कर के सुल्तान इस मुहिम के बाद इटली पर मार्च करेगा, वीनस बहुत परेशान था। उन्होंने हमेशा जजीरा नुमा में तर्कों की मौजूदगी को अपने गलबे के लिए खतरे के तौर पर देखा और इसे रोकने की कोशिश की। इस वजह से कुछ लोग कहते हैं कि सुल्तान को वीनस के एजेंटों ने जहर दिया था, जो डॉक्टरों के तौर पर महल में लाए गए थे। इस मौत का ऐलान उस्मानी मुल्क में इतालवी सिफारतकारों ने फौरी तौर पर वीनस में किया। ला गिरंडे इकोला ई मोरट्टा यानी अजीम उकाब मर चुका है। थोड़ी देर बाद रोम में पोप को एक कोरियर भेजा गया ताकि उन्हें सुल्तान की मौत के बारे में भी मतला किया जा सके। सुल्तान की मौत के बाद तोपों पर फायरिंग की गई और इटली में कई दिनों तक जश्न मनाया गया। इसकी मौत के साथ फ्लोरेंटाइन और इटली के इत्तेहाद का ख्वाब देखने वालों की उम्मीदें 4 सदियों तक पूरी नहीं होंगी। एहसास कमतरी पेचीदा है। सुल्तान की शख्सियत ने कुछ लोगों को इस कदर हैरान कर दिया कि उन्हें शक हो गया कि इतनी आला खूबियों वाला हुक्मरान तरका मुसलमान नहीं हो सकता। उन्होंने यहां तक इल्जाम लगाया कि वो ये खुसूसियात अपनी मां को देता है, जिसके बारे में उनका दावा है कि वो फ्रांसीसी है। सुल्तान मोहम्मद दुवम जैसे गैर मामूली शख्स को सामने न लाने की वजह से ये तवाहुम परस्ती का जुनून पैदा हुआ। सुल्तान मोहम्मद दुवम एक मुखलिस मुसलमान थे। उन्होंने महल में दाखिल होने वाले हुरूफियों को सजा देकर दीन की पाकीज़गी के तहफ़्फ़ुज़ में बहुत बड़ा काम किया। हुरूफ हुरूफ के असरार पर मबनी एक नज़रिया है और इस तरह कुरान के मख्फी मानी को समझने का दावा करता है। उन्होंने इस वक्त के मुमताज़ तरीन उलमा से सबक हासिल किया और इल्म के लिहाज से इस्लामी स्कॉलर के दर्जे तक पहुंच गए। उनके पास कुछ यूनानी और इतालवी असातिज़ा भी थे। वो उलमा और कारीगरों को बहुत अहमियत देते थे और उनके साथ बातचीत करना पसंद करते थे। मौला हुसैन, मौला गोरानी और इकशमसदीन, जो उनकी जवानी से ही उनके उस्ताद थे, इन उलमा में सबसे ज्यादा मशहूर हैं। अपने वालिद की तरह वो म्यूलेवी ऑर्डर के रुकन थे। इस्तांबुल में उसने जिस यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी वो उस्मानी तालीमी निज़ाम की आला तरीन सतह थी। अब तालीम के लिए अनातोलिया से मिस्र, ईरान और तुर्किस्तान जाने की जरूरत नहीं थी। मशरिक, अरब और ईरान से बहुत से मजहबी और साइंसी स्कॉलर्स इस्तांबुल आए और सुल्तान की खिदमत में दाखिल हुए और उनकी तारीफ हासिल की। लातीनी पगड़ी या तुर्की की पगड़ी। सुल्तान मोहम्मद दुवम ने अपने तैयार करदा आइन के कवानीन के साथ रियासती तंजीम तैयार की। उसने अंदरून के नाम से महल की अकेडमी को दोबारा डिजाइन किया। उन्होंने रियासती मुफादात के लिए तर्क नजाद सियासतदानों के बजाय दिवशीरमी, एक ऐसा निज़ाम जिसने सल्तनत के गैर मुस्लिम शहरियों को रियासत के अफसर बनने की तरबियत दी, नामी रियासती अफराद को मुलाजमत देना ज्यादा फायदामंद पाया। खारजा पॉलिसी में उनकी हिकमत अमली काबिल जिक्र थी। वो अपनी कायम करदा इंटेलिजेंस एजेंसी के जरिए यूरोपी सियासत को अपने हाथ की हथेली की तरह जानते थे, जो सही वक्त पर फैसले सुनाते थे। वो प्रोपेगेंडे की अहमियत पर यकीन रखते थे। उन्होंने लोगों के अकायद और रस्म व रिवाज के तय रवादारी का मुजाहिरा किया। जब रोमिलिया में इसकी फतूहात उसे सर्बिया की सरहद पर ले आए तो ऑर्थोडॉक्स फिरके के सरबों का बादशाह बरानकोविच हंगरी और उस्मानियों के दरमियान रहा। उसने एक सफीर सुल्तान मोहम्मद दुवम और एक हंगरी के बादशाह जान हनियदी को भेजा।
वो दोनों हुक्मरानों से पूछ रहा था कि अगर सर्बिया को उनकी इंतजामिया पर छोड़ दिया जाए तो सर्बिया के लोगों के मजहब के साथ क्या सलूक किया जाएगा। कैथोलिक हंगरी के बादशाह ने कहा कि वो तमाम ऑर्थोडॉक्स गिरजाघरों को मिस्मार कर देंगे और उनकी जगह कैथोलिक गिरजाघर तामीर करेंगे। सुल्तान मोहम्मद दुवम का जवाब हमेशा की तरह बेमिसाल था, मैं हर मस्जिद के बगल में एक गिरजाघर तामीर करने की इजाज़त दूंगा और हर एक को अपने मजहब के मुताबिक इबादत करने की इजाज़त दूंगा। इस तरह सर्बिया आसानी से उस्मानी हुक्मरानी के तहत आ गया। इस्तंबुल की फतह से पहले के दिनों में बाज़ंता मेज़सुन वज़ीर आला लुकास नोट्रास ने कहा, मैं लातीनी मतरी कैथोलिक हुक्मरानी के बजाय शहर के वस्त में तर्क पगड़ी मुस्लिम हुक्मरानी देखना पसंद करूंगा। फतह के बाद ऑर्थोडॉक्स और जैनों को दी जाने वाली रियायतों ने उस्मानियों को यूरोप में तेजी से आगे बढ़ने में मदद की और ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक के इत्तेहाद को रोक दिया। फ़लसफ़ी सुल्तान मोहम्मद दुवम का शुमार तुर्की और दुनिया की तारीख की अजीम तरीन और रंगारंग शख्सियात में होता है। उन्होंने मुल्क भर में जो खैराती काम किए, उलमा के लिए उनका एहतराम और यहाँ तक कि उनकी अफसानवी जिंदगी भी उनके किरदार की मजबूती का काफी सबूत है। उन्होंने अरबी, फारसी, इब्रानी, सर्बियाई, इतालवी, लातीनी और यूनानी की तालीम हासिल की। वो इस हद तक एक माहिर शायर थे कि उन्होंने उन्हीं के कलमी नाम से नज़मों का एक मजमुआ लिखा था जिसे दीवान के नाम से जाना जाता था। वो नफीस था और दुनिया का वसी इल्म रखता था, यहाँ तक कि उनके पास रियाजी और बैलिस्टिक्स में खोज लगाने के लिए काफी इल्म था। वो मशरिकी अदब और यूनानी फ़लसफ़े पर उबूर रखते थे। सुल्तान मोहम्मद दुवम के बारे में कहा जाता है कि वो दरमियाने कद के थे और गोल चेहरे, चौड़े माथे और नाक के साथ मजबूत छोटिये से तामीर किए गए थे। वो अच्छे कपड़े पहने हुए थे और स्टाइल का एहसास रखते थे। उन्होंने मिस्यूवेज पगड़ी पहनी हुई थी, जो उलमा जैसे लोगों की तरफ से पहनी जाने वाली रस्मी पगड़ी थी। वो बहुत से लोगों से बात करना पसंद नहीं करता था और अपने राज अपने पास रखता था, यहाँ तक कि इसने अकेले खाना भी खाया। ये हुक्मरानों की शाइस्तगी और वक़ार का नतीजा था। उन्होंने हरम की जिंदगी पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। उन्होंने बाज़ंता नजाद पाल्यूलोगोस और कोमिनेउस खानदानों की शहजादियों के साथ दोलुकदैर शहजादी सीटी मुकर्रम हातौन, किरमानी शहजादी गुलशाह हतवन और वजीर ज़िगिनोस पाशा की बेटी हादेस हतवन से शादी की। ये कहा जाता है कि इसकी बीवी सीख हातौन फ्रांस के बादशाह की बहन थी जो फतह के वक्त इस्तंबुल में थी। उनके 3 बेटे थे जिनके नाम बायजीद, मुस्तफ़ा और सैम थे। शहजादा मुस्तफ़ा 23 साल की उम्र में इंतकाल कर गए जब उनके वालिद जिंदा थे। इसकी इकलौती बेटी कीवन के हुक्मरान इज़वन हसन बे के बेटे से शादी की। इस्तंबुल की फतह के बाद उसने आया सोफिया चर्च को मस्जिद में तब्दील कर दिया। इस काम के लिए उन्होंने बुनियादें कायम की। उन्होंने आया सोफिया के साथ साथ शहर में बड़ी और छोटी मसाजिद का भी इफ्तिताह किया। उनका एक मकबरा अबू अयूब अंसारी की कब्र पर तामीर किया गया था, जो पैगंबर इस्लाम के असहाब में से एक थे और इस्तंबुल के मुहासरे के दौरान फौत हो गए थे, और उसके बगल में एक मस्जिद थी। ये जगह इस्तंबुल में सबसे ज्यादा रूहानी मकामात में से एक बन गई है और साथ ही एक सरकारी जगह जहां तलवार चलाने जैसी तकरीबात मुनक़िद की जाती। उन्होंने शेख वफा के लिए एक मस्जिद, मदरसा और इमामत सूप बावर्ची खाना का इंतजाम किया। उसने 7 पहाड़ियों में से एक पर शहर के वस्त में तबाहशुदा गिरजाघर के मकाम पर एक बड़ी मस्जिद तामीर, फाते मस्जिद, जो 1457 और 1470 के दरमियान तामीर की गई थी, एक बड़ा कम्प्लेक्स है जिसमें एक मदरसा, इमामत और अस्पताल है। सुल्तान मोहम्मद दुवम को यहाँ उनके मकबरे में दफन किया गया था। रूमेली किले के अर्द गिर्द और सल्तनत उस्मानिया के बहुत से कोनों में मसाजिद और खैराती काम तामीर किए गए। दौर हुकूमत में तामीर की गई 30 मसाजिद का जिक्र करने से उनकी तामीर नौ की सरगर्मियों की वसअत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है।